See, for Nadi, we'll use this chart. 28th September 1998, 8:36 a.m., Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Okay. I told you this person, born as a male, converted himself into a female by doing a sex operation somewhere in Thailand, right? Bangkok. Okay. And this chart we will use. Now I'll tell you step by step what is to be done in Nadi. Simple. Take a planet. Take a planet. Can I write down? Let it be any planet, okay? Take a planet. First, you see 1, 5, 9, any planets are there. From that planet. Simple, yeah. That's what I'm saying. Take a planet. That is what I'm saying. Depending upon the requirement. Depending on the requirement. If you want to do study for mother, take moon. To study for father, take sun. If you want to study for a female, take Venus as a Jivakara. For male, take Jupiter as a Jivakara. Okay, so take a planet. First is check 1, 5, 9 if any planet is there. If any Rashi from house, not Rashi means house, trine. Okay, take this chart. Take this chart. Okay, take this chart. Pura. Step pura. Take a planet and write down the planets in first house, fifth house, ninth house from that planet. First step. Okay, we'll see degree later on. Okay, second, go to the second house. Go to the second house from that planet. Then go to the 12th house from that planet. Then you go to the 7th house from that planet. अरे वेनी प्लैनेट ये रामायण बोल के राम कौन है, सीता कौन है? अरे पहला 11 लो ना, पहले 7 ले लो ना. मिनिमम बैर रिक्वायरमेंट ये है. हाँ, अभी दिमाग इसका चला. ठीक है, समझा? 1, 5, 9, 2, 12, 7. What calculate everything? अरे अभी तो ही बोल. दैट इज व्हाट. अभी 2 बोलेगा तो ना ऑटोमेटिक 16 आ जाएगा, बट मिनिमम तो 2 ले लो मैं बोलता है. ओके, यू हैव टू गो टू 6 and 10. आई एम नॉट डिनाइंग, बट मिनिमम 2 ले लो ना. 2 लेगा तो आपको याद नहीं आएगा 6, 10 लेने का है करके. क्लियर? ओके, now I'll explain you with this why this is very important. In a chart, you will see some planet exalted. Okay, say for example sun is there in Aries. Okay, anybody has sun in Aries? You have in Aries. You have in Aries? You have in Aries? Tell me, in sun dasha हुआ कि नहीं अभी तक किसी का? तुम्हारा हो गया sun dasha? Okay, we'll take her chart. Okay, कौन सा साइन में? सन एरिस में है ना. आई एम एक्सॉल्टेड में पूछ रहा हूं. एरिस में है ना. ओके, लियो में और सैजिटस में भी प्लैनेट है. इन लियो एंड सैजिट इज देयर एनी प्लैनेट? आर देयर एनी प्लैनेट्स? नो प्लैनेट. इज देयर एनी प्लैनेट इन द सेकंड हाउस? दैट इज, हाँ, फ्रॉम द सन आई एम आस्किंग. Mercury is there.
ठीक है, सन का फ्रेंड है वो मेरकुरी, नो प्रॉब्लम। सन का पीछे कौन है पाइसेस में? हाँ तो ये बोला नहीं ना मेरे को 15N में सन के साथ मून और केतु है, मून और केतु है। ओके, तो सन इट लुक्स दैट इट इज एक्सॉल्टेड बट इट इज नॉट एक्सॉल्टेड, इट नॉट गिव यू दिस गुड रिजल्ट्स बिकॉज सन के आगे मून है, अमावस्या हो गया। ओके, एक ही साइन में टेक इट एज अमावस्या। ओके, इट इज नॉट अमावस्या, इट टेक इट एज अमावस्या। ओके, वो प्रतिपदा होगा नहीं तो द्वितीय होगा एट द मोस्ट। ओके, अमावस्या नहीं तो प्रतिपदा होगा, ठीक है। तो उसका आगे केतु है, करेक्ट। दैट मीन्स सन का एक्सॉल्टेशन पावर इज लॉस्ट, सन का एक्सॉल्टेशन पावर इज लॉस्ट। So what you will make out of this? Sun represents father. Okay, sun का पीछे मून है, सन के आगे केतु है। ओके, तो फादर का जबी तो केतु विल बी देयर इन दैट साइन। इफ यू टेक द प्रोग्रेशन, केतु विल बी देयर, राहु केतु 18 years रहता ना, 18 months। Okay, that means 18 years in full circle, full cycle, right? So when she was born up to, I'm not taking degree now, father has gone through a lot of testing times when she was born. हाँ, फादर का हेल्थ या कुछ तो भी खराब हुआ है, खराब हुआ है। आपका पैदा होने के बाद एक 8-9 महीना रहेगा, 11 डिग्री से ना, देयर वाज समथिंग। ओके, और फादर का फैमिली में जो भी है, समथिंग हैज हैपेंड बिकॉज केतु हैज कम बैक टू मीट द सन। ओके, एंड दिस हैपेंस एवरी 18 years, this happens every 18 years. So 18th year में कुछ हुआ, after you are born आया फादर को। ओके, 36th year में आया, कभी आएगा? 5 साल के बाद। ओके, ठीक है, बराबर है। क्यों मैं बोला 18? बिकॉज सन एंड केतु बोथ आर टुगेदर, तो 18 years के बाद उधर ही आएगा वापस केतु घूम के फिर के, करेक्ट। केतु इज ऑल कोर्ट केसेस, बैंक का केस, जो भी हो केसेस है वो सब आएगा, आया, बराबर है। हाँ, योर लॉयर, ठीक है, बट फादर मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस फाइनेंशियल ट्रबल। केतु इज ऑल्सो फाइनेंशियल ट्रबल्स ओनली, बिकॉज सन, केतु इज ऑल ट्रबल्स, केतु इज ऑल ट्रबल्स। ओके, हाँ करेक्ट, 18th year में, 18th year में, हाँ करेक्ट। नहीं, हस्बैंड को मार्स के लिए पकड़ने का। सन इज SUN is also sun, SON. SUN planet as a sun is also signifying sun, SON. Do you have, sun means first child. Do you have children? Okay. Sun significator, there will be problem in begetting a child. Okay, because Ketu is coming towards the sun, correct? So what I did, 1-5-9 में सन के साथ मून है, केतु है, तो 1 में आ गया ना वो, 5 में नहीं है, 9 में कुछ नहीं है, 2 में कुछ भी नहीं है, 12 में पाइसेस में कुछ है, 2 में मरकुरी है, मरकुरी ठीक है। किधर? हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सन के पीछे वीनस, सन के पीछे वीनस प्रॉब्लम है। ओके, सन के पीछे वीनस, वीनस इज डायर एनिमी ऑफ सन, नो? वीनस और सन का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, एनिमीज है ना। तो सन के पीछे वीनस क्या है? बिफोर शी वॉज बॉर्न ऑल्सो
father has got some big major financial problem. Venus is finance. Venus is finance. Father was troubled by a female who was in a high place. एक मिनट. No, in the past, before you were born, because 12th house is past. Okay, before you were born, your father was troubled by a female, okay, who was in a high place. Could be for money, नहीं पॉसिबल नहीं. बताओ मेरे को. एक मिनट ना. अरे बट हिस्ट्री तो मालूम रहता है यार. हाँ, फादर इज इनटू व्हाट बिजनेस? फैक्ट्री है. ओके. इज देयर एनी सन से 7th house is Venus. Was there any partner in his business? Was it a female? Huh? Does he trade or something? Does he purchase something from a female factory which is run by female workers are there? Was there any female who had giving trouble to him? पूछ के बताओ. Okay, because Venus is exalted there. Okay, that means a lady who is in some good position, okay, very elevated position, अच्छा position में, has troubled him in the past. Exalted ही है ना Pisces में. रेट्रो होगा तो नीच हो जाएगा. वो रेट्रो होएगा तो नीच हो जाएगा. रेट्रो होएगा तो दो चीज है. रेट्रो होएगा तो दो लोग फंसाएंगे. 2 लोग. 2. रेट्रो इज ट्वाइस. रिमेंबर दैट इन नाडी. ट्वाइस. ओके. हमेशा नहीं होता. कभी सन से पीछे भी रहता है. तीसरा हाउस में भी रहता है. इसके लिए सन और वीनस के बीच में 44-45 डिग्रीज का डिफरेंस रहेगा तो शादी में प्रॉब्लम आता है. शादी नहीं होता. मालूम है ना. 48 डिग्रीज सन से when Venus is at 48th degree, around 48 degree, 45 to 48, मैरिज नहीं होता है या मैरिज में प्रॉब्लम आता है. हाँ, बट उसको गुरु का दृष्टि है तो प्रॉब्लम नहीं है. उसका बीच में या सूर्य को या शुक्र को गुरु का दृष्टि है तो प्रॉब्लम नहीं है. डिग्री वाइज. हाँ, अहेड सन का अहेड. डिफरेंस ये है कि टाइमिंग. केतु इस 12th में है तो पास्ट हो चुका है. वो केतु आगे है तो होने वाला है. केतु आगे है तो फ्रॉम 18 to 36th ईयर में फादर विल फेस अ प्रॉब्लम. पीछे है तो कभी और पीछे है तो अभी सन इज इन एरीज. समझो सन इज इन एरीज. ओके, एग्जाम्पल ले लो. केतु इज इन पाइसेस. ओके, तो केतु विल कम इन अपोजिशन व्हेन इट कम्स टू द साइन एक्वेरियस. नहीं, आफ्टर 9 years नहीं, आफ्टर 18 plus 9 27. तो राहु सामने आएगा ना. ओके, फिर बाद में वो टाइम पे प्रॉब्लम आएगा. फिर बाद में 4 साइन ले लो. सैजिटेरियस में आएगा तो आएगा तो 18 + 18 + 18 वो करके आएगा. तो समझ गया. तो टाइमिंग के लिए नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट. वही तो लिया ना 7. वही तो मैंने लिया ना पहले में. वही तो पीछे ही किया मैंने. That is why I said Aquarius.
Not every 9 years. Yeah. How every 9 years? From birth, if Ketu is in Pisces, एक्वेरियस में आएगा तो एक्वेरियस कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट. ओके. एरीज इज ईस्ट. तो अगर केतु उधर एक्वेरियस में आएगा तो उसको ऑपोजिशन में आएगा ईस्ट एंड वेस्ट. नो, करेक्ट. नो, फिर बाद में जब सैजिटेरियस में आएगा तो इट विल बी इन सेम डायरेक्शन ईस्ट, नेटल से, सन से. सिंपल. क्लियर? बोथ अपोजिशन. ट्राइन में आएगा तो इट विल बी कंजंक्शन बिकॉज इट इज द सेम डायरेक्शन. क्लियर? अभी ये पहला डालेगा, पहला ही लेने के बाद. ओके. उसके बाद 2 में जब जाएगा ना, 6 और 10 ले लो. 2 में जाएगा तो टेक 6th हाउस एंड 10th हाउस, नॉट साइन. 6th हाउस, 10th हाउस. When you go to the 12th, take 4 and 8, which will tell you the past. When you take 7, take 3 and 11. क्लियर? इतना ही करना है आपको, दूसरा कुछ नहीं करना. कुछ नहीं आएगा ना, फिर ब्लैंक है तो कुछ नहीं. सिंपल है. देन सन एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड का रिजल्ट देगा. Correct. That is, you will come to know by arranging it in the degree wise. Correct? Correct. Now we will take this chart. We will take this chart. Tell me which planet you want to take in this chart. Gender change करने के लिए what is the planet? Venus. When Venus is connected with Ketu, Ketu is, Rahu is what? Expanding. Ketu is cut. And Rahu is connected with Mars. Venus is connected with Mars. Also, it will give you that. Okay. Now we'll see how it is. Now, Venus. Okay, Venus. ठीक है? Take Venus. Without arranging the degree, you will have Venus, Sun, Mercury. Correct? उसका ट्राइन में कोई भी नहीं है. ट्राइन में कहां है बॉस? अरे हर्षल से मत लो यार, मानती कुछ भी मत लो, कुछ भी मत लो ना. वीनस, सन, मेरकुरी है ना, ट्राइन में कुछ भी नहीं है ना. ठीक है. वीनस के आगे सन जो है ना, वो बड़ा खतरनाक. वीनस के आगे सन. अरे यार, वीनस 2 डिग्रीज में है. तो वीनस इज व्हाट? वीनस इज व्हाट? वीनस इज in this case the G इसमें is a male, born as a male, right? Okay. This person who you're there, no? This person has got a relationship with high status people, and that person is, those people are all educated ones. Correct? Sun is high status. She is confirming. Sun is high status. Okay? And Mercury is educated. Okay? Friend. So, this person is in relationship with other females who are divorced or not happy in their family life. हाँ हाँ कि नहीं? करेक्ट. देखो, I see that. How did you know this? Why? Because Venus is debilitated. When Venus is debilitated,
It is a female. It's a married female who is not happy in the marriage life. He is born as a male, no? Okay. और वो जो भी फीमेल है, वो फीमेल का हस्बैंड, वो अच्छा ऊंचा पोजीशन में है, कोई अच्छा स्टेटस में है, पावरफुल है, वैसा है. हमें करेक्ट? दैट यू डोंट नो. बट he has relationship with, or he had relationship with females who are divorced or who are not happy in their married life. Correct? Yes. और आगे मेरकुरी भी है. आगे मेरकुरी भी है. ओके. इनका पिताजी ओके. अभी नाउ ए वीनस के पीछे, अभी नाउ वी हैव टेकन 159. उसका पीछे राहु है. उसका पीछे राहु है. At some point of time, he was also into relationship with another religion, is also possible, or community. Quite broad-minded. Broad-minded. Okay. Venus is father का नहीं बोला मैंने, उसका बोला. Venus is females in life, no? ये मेल है ना, ये मेल. इसका एक मिनट. फादर का मैं बोलता हूं, फादर का आई टेक सन. फादर का आई विल टेक सन. ओके. तारा के सन हो. सन का पीछे वीनस है. सन का पीछे वीनस है. सन इज 10 डिग्री, वीनस इज 2 डिग्रीज. उसका पीछे राहु है, मार्स है. ओके. फादर is not happy with his wife. था तभी there was a problem of relationship between father and the mother. हाँ कि नहीं? था. They were not happy. Compatibility issues were there because sun के पीछे वीनस है और वीनस के पीछे राहु है, मार्स है, और कभी भी झगड़ा होने का दोनों. हाँ कि नहीं? क्यों? उसका पीछे राहु है, मार्स है, तो आगे होते ही रहेगा. ओके. तो 12th house is past. मार्स जब राहु के साथ रहता था, मार्स इज फाइट, राहु इज बिगर फाइट, क्रूएल फाइट. Sun and Sun is father and Venus is father's wife. Venus is father's this one, what do you call, elder sister. Venus is father's elder sister. है क्या? फादर को elder sister है? नहीं है. Venus is eldest daughter in the family. He has an elder sister. Correct. Elder sister का भी इसका फैमिली में, elder sister, ये फैमिली में फीमेल्स का शादियों के टिकता नहीं. हाँ कि नहीं? बराबर है? यस नो? क्यों? बिकॉज वीनस का आगे सन है. सब डाइवर्स हो गए, कुछ भी हो, समथिंग वाज देयर, ऑल करेक्ट. क्योंकि वीनस के पीछे राहु है और मार्स है. हाँ. इनका फैमिली में जो मैरिज जो भी होता है ना, लिसन, इनका फैमिली में जो भी मैरिज होता है ना, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ ए, ऐसा सब पूरा फैमिली में होता है. बराबर है? करेक्ट.
ठीक है, मैं बोलता हूं, बट जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे व्हाट आई डिड, 12 लिया, अभी 7 में कोई भी नहीं है। अगर 7 में कोई होता तो मैं 3 and 11 होता, मैं 7 में कोई भी नहीं है ना, तो 3 11 में कुछ भी नहीं है उधर, सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। सो 3 7 इज ऑपोजिशन। ऑपोजिशन जब लेता है, दैट ऑपोजिशन दैट प्लैनेट, यू शुड सी वेदर जो प्लैनेट हम लोग लेते हैं वहां पर उसका वो फ्रेंड है कि एनिमी। देखो मैंने अभी क्या बोला था कि फादर और उसका वाइफ का फादर और वाइफ का जमता नहीं, ओके। हाँ हाँ, देखो 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 अभी मून लेता हूं मैं, वेल टेक दिस मून, मून इज मदर, करेक्ट। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। सन, 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 ओके। मून, वेयर इज मून? Sagittarius. Take that as a planet. स्टेप बाय स्टेप। मून का 159 में सैटर्न है, मार्स है, राहु है, ओके। नाउ somebody was talking about degree में ना, who was talking about the degree? I think you were talking, right? Moon is at 2 degrees, हाँ कि नहीं बोलना, 2 degrees। वो पहले किसको जाके मिलेगा? एक मिनट, मून किसको जाके मिलेगा पहला? कैसे? राहु को मिलेगा 7 डिग्रीज, उसके बाद सैटर्न को मिलेगा, मगर मून का पीछे मार्स है ना। अरेंज दैट प्लैनेट दैट, ओके। सो मून इज व्हाट? मून इज मदर, मार्स इज हस्बैंड ऑफ मदर, मार्स इज हस्बैंड, नो, ओके। So there was always a problem. So arrangement wise, what you will do? You will take Mars, Moon, Rahu. Saturn is debilitated here. So this mother, okay, was every time डोमेस्टिक वायलेंस, ओके, वायलेंस सब होने का घर पे, नॉट अवेयर, ओके। उसके वजह से तंग आके वो शायद दूसरा रिलीजन और कम्युनिटी में शादी किया रहेगा, उसका माँ, बराबर है, दूसरा कास्ट, ठीक है। आज का तारीख में मैं उसका ये नहीं है, उसका कम्युनिटी नहीं है, दूसरा कम्युनिटी है, करेक्ट, क्योंकि मून के आगे राहु, ओके। और वो राहु के आगे सैटर्न, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो एल्डरली पर्सन, बहुत एल्डरली, ज्यादा एल्डर है उससे एज वाइज, बराबर है, देख, बिकॉज राहु के आगे सैटर्न है, सैटर्न इज एज इट इज एल्डरली, और राहु पहला राहु को मिलके बाद में सैटर्न को मिलता है, करेक्ट। अभी यहां पर मून इज मदर, करेक्ट। सैटर्न इज जो भी है उसका फादर का यंगर ब्रदर, सैटर्न फादर का यंगर ब्रदर, बीच में राहु है ना, करेक्ट। सो दे बोथ आर एट लॉगर हेड्स, फादर का यंगर ब्रदर है, नॉट अवेयर, हाँ, अच्छा, मदर साइड का ज्यादा शी नोस। सी राहु स्प्लिटिंग द मून एंड सैटर्न, नो, राहु स्प्लिटिंग मून एंड सैटर्न, नो, करेक्ट। बीच में राहु आया ना, स्प्लिट कर, राहु स्प्लिट करता, केतु स्प्लिट करता, समझ गया? हाँ, अभी मैं यहां पर 159 लिया, अभी अपोजिशन में कौन आएगा? केतु आएगा उधर,
मगर मैं केतु नहीं लेगा, क्यों? मैं राहु ऑलरेडी ले लिया। आता हूं, रुकना। राहु, एक मिनट। मैं केतु नहीं लेगा क्योंकि राहु ऑलरेडी हैव टेकन। करेक्ट? देयर इज जुपिटर देयर। ओके, नाउ जुपिटर इज retrograde there. Jupiter is retrograde there. That means what? When Jupiter is retrograde, so this Jupiter, what it will do for the mother? What it will do for the mother? Opposition में Jupiter is elderly people in the advisors, elderly people in the family. Okay, so Jupiter is retrograde. When she decided to split from the father, from her husband, that is his father, एक minute, passed away. Okay, okay, so Mars is the husband anyway, no? पहले का या अभी का? Mars is the husband. Okay, but जब ये शादी करने को गया, Jupiter retrograde है. Jupiter is advisors in the family, elderly person in the family. Also, they were totally in opposition with her. They were in totally opposition with her. Jupiter is kids. Kids were not in favor. Kids were not in favor. Correct? See how I am bringing the significations into the picture. Moon is mother, Jupiter is children, Jupiter is elderly person in the family, it is an opposition, so opposition means opposing. Now here Moon and Jupiter both are friends, not an issue, not a problem, but oppose करता है. But यही केस में अगर जुपिटर के सामने अगर कोई राहु होता, केतु होता, then it will be in a very dangerous position. But somehow वहां पर both were objecting, children and elderly person in the family, both were objecting to her marriage because Jupiter is retrograde. राहु अपोजिशन में, राहु कंजंक्शन में है. कैसे अपोजिशन में? सेम साइन, नो? बराबर बराबर ना. अभी मैं 3 में क्या किया? केतु को लिया, जुपिटर को लिया. ओके, अगर मैं 2 लेगा, 2 में जाएगा तो उधर कौन आएगा? हाँ, करेक्ट. मून का वी डिड 159, वी डिड फर्स्ट, वी डिड 7 लेके, वी डिड 3 7 11, 12 लेके we did only that Mars there. 12 में नहीं है, but degreically Mars will come in the 12th, no? Okay, now 2 में we have yet to take that. 2 में you will have only Venus, Sun and Mercury. Okay, Moon or Venus does not go along well. Moon and Venus does not go along well. Moon is mother, Sun is father of the mother. In between there is Venus. दोनों का एनिमी है, मून और सन का एनिमी वीनस है. तो ये मदर का बीच में और फादर का बीच में वीनस कौन है? द एल्डेस्ट डॉटर इन द फैमिली. एल्डेस्ट डॉटर इन द फैमिली और द बुआ. Okay, so moon is mother का eldest daughter. Okay, ये दोनों का बीच में there was a problem created by the eldest daughter, or the daughter-in-law in the family could be a problem between the mother and the mother's father. Elder daughter हो सकती है. Elder daughter she has
She has elder daughter. So here the eldest daughter, she was also a problem creator for her. हाँ कि नहीं? Correct? See, moon and sun are friends, no? बट बीच में दोनों का एनिमी वीनस है ना, बीच में दोनों का एनिमी वीनस है ना. वीनस कौन है रिलेशनशिप में? फादर का, एक तो फादर का, एक तो एल्डर सिस्टर है. ओके, दूसरी औरत हो सकता है. ओके, हाँ हाँ, वो भी हो सकता है. लड़के का वाइफ भी हो सकता है. That's why I said daughter-in-law. Venus is daughter-in-law. नहीं है ना? डॉटर है, Venus is daughter, eldest daughter. उसका भी उसका जमता नहीं. बराबर ना? समझ गया मैंने क्या किया अभी? Got it? Clear? अभी जो चार्ट है वही मैं बता सकता हूँ. अभी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है. मेरकुरी एजुकेशन, मेरकुरी इज एजुकेशन. ओके, मेरकुरी इज at 12 डिग्रीज. ओके, मेरकुरी का पीछे सन है, उसका पीछे वीनस है. ओके, मेरकुरी का ट्राइन में कोई भी नहीं है. मेरकुरी एक्सॉल्टेड है बट कंबस्ट है. ये सब भी अप्लाई करो, कंबस्टन, एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेड, वो सब भी देखो. हाँ, ओके. वो पढ़ाई कोई अच्छा कॉलेज में किया है, जो भी पढ़ाई किया वो, ओके, जो भी पढ़ाई किया है वो अच्छा कॉलेज में कुछ पढ़ाई किया है. एजुकेशन डिसेंट है उसका. ओके, मेरकुरी, एक मिनट. ये जो मेरकुरी है, मेरकुरी का पीछे सन है, उसका पीछे वीनस है. ओके, तो दिस पर्सन हैज बीन डिच्ड बाय अ फीमेल. ओके, अ फीमेल ऑफ अ वेरी, उसका प्रोफेशन में बिजनेस, बीज इनटू बिजनेस, राइट? फोटोग्राफी बिजनेस में है ना. हाँ, तो फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो बिजनेस, नो? Doing also business, no? अच्छा, ओके, ठीक है. एनीवे, जेंडर करेक्शन अपन देखना, वीनस से जेंडर, उसका पीछे राहु है, मार्स है ना, और वहां पर सैटर्न है ना. एजुकेशन मेरकुरी है. मेरकुरी का 159 में कोई भी नहीं है. 1 में सन है, वीनस है पीछे. ओके, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरकुरी का फ्रेंड है सन, और मेरकुरी का फ्रेंड भी वीनस है, बट सन का फ्रेंड नहीं है वीनस. ओके, तो देयर कुड हैव बीन, while studying, this person would have got into relationship with some girl, okay, or some girl, because of which he would have got distracted in the studies. Check it and tell me. Okay, check it. Okay, why? Because Mercury is studies, Sun is some good college, किधर तो भी है, Sun is good. Okay, एंड उसका पीछे वीनस है, ओके. ये 159 हो गया. अभी 12 में हम लोग देखा राहु है, पीछे मार्स है. ओके, राहु मार्स पीछे मेरकुरी का, मार्स इज मेरकुरी का एनिमी है. मार्स इज मेरकुरीज एनिमी. He has faced setbacks in the
education. If I can tell you which year, will you be able to tell me? Okay, okay. We'll do that. When we do the rotation of the planet, movement of planets, we will do that. Okay. And the spreadsheet which I gave you, उसमें Mars का भी है, Venus का भी है, सबका. Okay. Now second house में, if I go, we finish 159. Second house में वहां पर केतु को मिलता है. It is meeting Ketu. So there is a break. There is a break. Okay. There was a break in the education. Am I correct? Not sure. Ketu change, Ketu is break, everything. Okay. Then break होने के बाद वो मेरकुरी उधर जाने के बाद when it goes to the second house में जाएगा तो it was meeting Ketu and Jupiter first. Then it is meeting debilitated Saturn. सेवेंथ हाउस में है ना, सेवेंथ हाउस में सैटर्न है ना, और वो सेवेंथ हाउस में 3 में दैट इज मून है, वहां पर क्या है, मार्स एंड राहु. ये सब मैलेफिक्स है ना उधर. ओके. तो पढ़ाई के लिए वो अपने घर पे नहीं किया, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था उसका, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था उसका. एंड मून होने से वो क्या हो गया था, और सामने डेबिलिटेड सैटर्न है विच इज रेट्रोग्रेड. सी व्हेन देयर इज अ डेबिलिटेड सैटर्न एंड रेट्रोग्रेड बोलेगा तो इट समटाइम्स एक्ट्स एज अ एक्सॉल्टेड सैटर्न. बट देयर इज मार्स एंड राहु इन द फिफ्थ हाउस, सो एक्सॉल्टेड सैटर्न विल नॉट गिव यू दैट बेनिफिट द वे वी डिड फॉर एक्सॉल्टेड सन. हम लोग ने देखा था ना, वैसे मैं बता. ओके. सो यहां पर जब मेर्कुरी व्हेन इट कम्स टू द साइन लिब्रा, द सेकंड हाउस, it will meet Ketu. So there is a break. Okay. Then there is Jupiter मिलता है. तो उसने 2 कोर्स ट्राई किया. ब्रेक होने के बाद एक कोर्स लिया रहेगा, बाद में चेंज किया रहेगा. करियर पाथ चेंज किया, करेक्ट, राइट. उसमें उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. He would have left it halfway because सामने debilitated Saturn. क्लियर है? सी हाउ आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी प्लैनेट को लेके. जुपिटर रेट्रो है, सो 2 बार चेंज किया उसने स्टडीज में, 2 बार. करेक्ट. ब्रेक होने के बाद वो बोला मेरे को ये अभी ठीक नहीं है, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. एंड जुपिटर है उधर, प्रोबेबली ही वुड हैव ट्राइड इन फाइनेंस आल्सो, कमर्शियल में भी, फाइनेंस कमर्शियल में भी किया रहेगा शायद. फाइनेंस हो, लीगल हो, ऑल्टरनेट थेरेपीज हो. केतु इज ऑल्टरनेट थेरेपीज, उसमें हो सकता है. केतु इज ऑल्टरनेट थेरेपीज, रेकी, वो सब है ना. डॉक्टर ऑल डॉक्टर रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड. इसको अच्छा ज्ञान है, इसको मेडिसिन के बारे में अच्छा ज्ञान है. इवन दो इज नॉट अ डॉक्टर, इज गॉट गुड नॉलेज ऑफ ऑल द मेडिसिन्स. देखो, मदर इज अ पीडियाट्रिशियन. मून से भी दिखता है ना, केतु है ना सामने, केतु इज डॉक्टर, ट्राइन में नहीं, ऑपोजिशन में केतु है मून से. थर्ड हाउस में है. मैंने बोला राहु कल ही लेने का, ये नहीं लेने का बोला था ना मैंने, समझ गया. मून से बोला, समझ गया. जेंडर क्यों चेंज किया बोलेगा तो, एक मिनट, शी हैज गॉट अ क्वेश्चन. अभी नाउ हर क्वेश्चन इज he changed the gender. Okay. Now in his case gender change is Venus, I told you, no? Correct. Venus के पीछे राहु है, मार्स है. Now उसके आगे सन भी है, तो Venus एक पाप कर्तृयोग जैसा हुआ. Okay.
तो इसका कोई फीमेल से जमता ही नहीं होगा, द नॉर्मल फीमेल से उसको जमता ही नहीं होगा, देयर विल बी नो अट्रैक्शन। ओके, वीनस इज व्हाट, अ फीमेल, एंड डेबिलेटेड वीनस है, वो भी पाप कर दिया उसने, डिफरेंट फीमेल्स है। ओके, बट ऑल फीमेल्स है, बट नॉट ऑफ अ गुड ये कैरेक्टर और वॉट एवर दैट यू कॉल। देखो, समझा ना, बैड मैरिज, जिसका मैरिज चला नहीं, वो जो फीमेल्स है ना, पीछे राहु है, मार्स है, विद बैड हैबिट्स, फीमेल्स विद बैड हैबिट्स, करेक्ट, बराबर ना। और वो फीमेल्स क्या है, सब अच्छा खासा गुड पोजीशन से आने वाला है फैमिली में, क्योंकि उसका आगे सामने सन है, उसका आगे मेरकुरी है, मेरकुरी है, वो सब मीडिया रिलेटेड है, उसका फ्रेंड्स है। ओके, इसका सब चाल चलन ठीक नहीं है सर, जो भी फीमेल्स के साथ ये घूमता है, ठीक है, अभी घूमती है,